Hello student, today we will start our fourth chapter software project planning। तो चलिए स्टूडेंट्स फिर स्टार्ट करते हैं हम आप अपना आज का टॉपिक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग। ठीक है, देखिए क्या होता है। आफ्टर द फाइनलाइजेशन ऑफ SRS वी वुड लाइक टू एस्टिमेट साइज, कॉस्ट and development time of the project. Also, in many cases, customer may like to know the cost and development time even prior to finalization of the SRS. Whether we estimate before SRS or after SRS, it would always be very critical and crucial decision for the project. Estimation of cost and development time are the key issues during project planning. The correlation between cost and development time and the planning process. तो देखते हैं कि साइज एस्टिमेशन क्या होता है, राइट? You know very well, some programs are written in C, some in Pascal, others in Fortran, and still others in assembly language. Some programs are for GUI applications and some are for batch processing. Some are written using the latest software engineering techniques while others are developed without adequate planning. Some programs are well documented with carefully crafted internal comments. Others programs are written in a quick and dirty fashion with no comments at all. But there is one characteristic that all programs share. They all have size. सबका साइज होता है। देखिए क्या बताया कि हमें हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो कुछ क्या प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं सी में, कुछ यूज करते हैं पास्कल को, कुछ फोर्ट्रान करने में ज़्यादा कन्वीनियंट रहते हैं, कुछ असेंबली लैंग्वेज यूज़ करते हैं, कुछ हमारे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एप्लीकेशंस होती हैं, कुछ हमारी बैच प्रोसेसिंग सिस्टम्स होते हैं। कोई भी टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, बट कुछ प्रोग्राम्स हमारे बहुत अच्छे वेल डॉक्यूमेंटेड होते हैं और कुछ विदाउट कमेंट्स होते हैं जो यूज़र फ्रेंडली भी नहीं होते। तो स्टूडेंट्स देखिए कहने का क्या मतलब है कि साइज एस्टिमेशन मतलब मेनली क्या बताना चाहता है कि जब भी कोई कस्टमर डेवलपर के पास अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करवाने के लिए जाता है तो डेवलपर के लिए सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है यूज़र की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए उस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के साइज को एस्टिमेट करना, सॉफ्टवेयर के आकार को एस्टिमेशन करना और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और ये प्रोजेक्ट मैनेजर और डेवलपर्स को प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए और टाइम का यूटिलाइज करने के लिए हेल्प करता है। अब देखिए साइज एस्टिमेशन में हम टू टाइप्स ऑफ मेथड्स यूज करते हैं किसी भी प्रोग्राम का साइज एस्टिमेट करने के लिए। द फर्स्ट वन मेथड इज, पहला मेथड होता है LOC, जिसको हम कहते हैं लाइंस ऑफ कोड। ओके, देखिए स्टूडेंट्स लाइंस ऑफ कोड। बट उससे पहले एक और बात बताना चाहती हूँ कि जब हम साइज को एस्टिमेट कर रहे हैं तो the estimation of size is very critical and difficult area of project planning. तो साइज को एस्टिमेट करना इतना इजी भी नहीं होता है। ये देखिए estimation of size is very critical and difficult area of the project planning. It has been recognized as a crucial step from the very beginning. Difficulties in establishing units for measuring size lie in the fact that the software is essentially abstract. It is difficult to identify the size of a system. Other engineering disciplines have the advantages that
a bridge or a building or a road can seen and touched. They are concrete. Many attempts have been made at establishing a unit of measure for size. The more widely known are given below. जो मैं आपको बता रही हूँ लाइन्स ऑफ कोड, ठीक है, LOC जिसको हम बोलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, LOC क्या है? दिस वॉज द फर्स्ट मेजरमेंट अटेम्प्टेड. इट हैज द एडवांटेजेस ऑफ बीइंग इजिली रिकॉग्नाइजेबल, सीन and therefore counted. This may seem to be a simple metric that can be counted algorithmically. There is no general agreement about what constitutes a line of code. Early users of lines of code did not include data declarations, comments, or any other lines that did not result in object code. Later, users decided to include declarations and other unexecutable statements, but still excluded comments and blank lines. The reason for this shift is to recognition that contemporary code can have 50% or more data statements and that bugs occur as often in such statements as a real code. For example, in the function, if LOC is simple, a count of number of lines. देखिए क्या है स्टूडेंट्स, LOC लाइन्स ऑफ कोड, किसी भी प्रोजेक्ट की LOC को प्रोजेक्ट के स्टार्ट से ही डिटरमाइन करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, राइट? LOC के द्वारा किसी प्रोजेक्ट का साइज पता करने के लिए हमें उस प्रोजेक्ट की सोर्स इंस्ट्रक्शंस की लाइन को भी काउंट करना होता है, और हम सोर्स इंस्ट्रक्शन की लाइन को काउंट करते समय हमें कमेंट लाइन और ब्लैंक लाइन को नहीं काउंट करना चाहिए, क्योंकि वो लाइंस केवल डेवलपर्स को सोर्स इंस्ट्रक्शंस को समझने के लिए राइट की गई होती हैं। किसी भी प्रोजेक्ट की LOC को प्रोजेक्ट के स्टार्ट से ही डिटरमाइन करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, राइट? LOC, अब व्हाई आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिपेंडेंट? जैसा कि हमने देखा कि LOC मेथड से हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट के साइज को एस्टिमेट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट के सोर्स कोड को काउंट करके पता लगा रहे हैं। लेकिन आप सभी जानते हो कि जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम करते हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक प्रोग्राम के लिए अलग अलग नंबर ऑफ लाइंस का कोड किया जाता है, राइट? जैसे कि अगर हम ये प्रोग्राम जावा में बना रहे हैं तो जावा में 2 नंबर के एडिशन के लिए हमें 10 लाइन का कोड लिखना पड़ता है, राइट? अब अगर हम कोई और लैंग्वेज का एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो हमने पाइथन का एग्जांपल लिया। पाइथन प्रोग्रामिंग में 2 नंबर के एडिशन के लिए ओनली 5 लाइन का कोड लिखना होगा। सेम इसी टाइप से आप सी का एग्जाम्पल ले सकते हो कि सी में अगर आप 2 नंबर को ऐड करना चाह रहे हो तो कितने लाइन का कोड लिखोगे। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आप सभी को ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि LOC की वैल्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंड करती है, इसलिए LOC को एक अच्छा प्रोजेक्ट साइज एस्टिमेशन मेथड नहीं माना जाता है। इसी कारण से प्रोजेक्ट साइज एस्टिमेशन के लिए फंक्शन पॉइंट को लाया गया, जिसे हम शॉर्टकट में FP भी बोलते हैं। बट उस फंक्शन पॉइंट बताने से पहले मैं आपको LOC की कुछ एडवांटेजेस भी बताना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए, ये एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए इंट शॉर्ट, हर एक लाइन को देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कैसे कैसे अलग अलग से काउंट किया गया है। ये देखिए पहली लाइन, ये सेकंड लाइन, मतलब ब्रेसेस ऑन को भी काउंट किया जा रहा है। ये देखिए थर्ड स्टेटमेंट, देखिए थर्ड लाइन,
दैट इज द 4th लाइन, दैट इज द 5th लाइन, दैट इज द 6th लाइन। हर लाइन को काउंट किया गया है। टोटल अपने पास 18 लाइन हो गई हैं। राइट, फंक्शन फॉर सॉर्टिंग एन एरे इन असेंडिंग ऑर्डर। कुछ एलओसी की देखिए एडवांटेजेस भी हैं कि अगर मान लो मैंने आपको ये काम दे दिया कि कोई भी प्रोग्रामिंग आप कर रहे हो तो इस पे एलओसी के द्वारा इसको करिए, तो आपके लिए इजी हो जाएगा, हर लाइन को आप इजीली काउंट कर सकते हो। अगर हम बात करें यूनिवर्सल के उस पे देखें तो यह चीज एक्सेप्ट की गई है कि इसका जो यूज है हम कोकोमो जैसे बहुत सारे मॉडल्स में इसका यूज करते हैं। डेवलपर के नजरिए से देखा जाए तो एस्टिमेशन में इसकी अलग से इंपॉर्टेंस है और इसका यूज करना भी बहुत ही सिंपल होता है। अगर डिसएडवांटेजेस बताऊं आपको एलओसी की, तो एक क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकती हैं। एक ही प्रोजेक्ट को अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके बनाएं तो कितनी संख्या हो जाएगी, अलग अलग उसकी क्वांटिटी सबकी अलग अलग आएगी। सपोज करो मैं एक स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि आप इस प्रोग्राम को सी के अंदर बनाइए, एक को बोलती हूँ कि आप इसी प्रोग्राम को जावा के अंदर बनाइए, और एक स्टूडेंट को मैंने बोला कि आप इसी प्रोग्राम को पाइथन के अंदर बनाइए। तीनों स्टूडेंट्स ने अलग अलग प्रोग्राम बना लिए। अब तीनों स्टूडेंट जो हैं उनका जो रिजल्ट आएगा वो तीनों स्टूडेंट का डिफरेंट होगा। राइट, तो सबका रिजल्ट डिफरेंट आया, तो इसलिए हम कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके बनाते हैं तो सबका रिजल्ट डिफरेंट आता है। एलओसी को प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग से ही डिटरमाइन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है और यह पूरी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिपेंडेंट होती है। तो इसलिए देखो, अब सबका मैंने बोला ना सब अलग अलग रिजल्ट देंगे, क्योंकि देखिए स्टूडेंट क्या होता है, मोस्ट रिसर्चर्स एग्री दैट द एलओसी मैट्रिक शुड नॉट इंक्लूड कमेंट्स और ब्लैंक लाइंस। क्योंकि क्या होता है कि अब तुम्हारा ही एग्जांपल लेती हूँ, एक स्टूडेंट तो उसने जो भी कमेंट डाले हैं, उसने जो भी हेडर फाइल यूज की है, उन सभी को पूरा अच्छे से काउंट कर रहा है, और एक क्या कर रहा है, वो सब उनको इग्नोर मार रहा है, वो ना ही कमेंट्स को ले रहा है ना ही वो ब्लैंक लाइंस को ले रहा है। तो since these are really internal documentation and their presence or absence does not affect the functions of the program, moreover comments and blank lines are not as difficult to construct as program lines. The inclusion of comments and blank lines in the account may be encouraged developers to introduce artificially many such lines in project development in order to create the illusion of high productivity, which is normally measured in LOC. लाइन्स ऑफ कोड या फिर किसमें काउंट करते हैं हम, पर्सन मंथ। राइट, व्हेन कमेंट्स एंड ब्लैंक लाइंस आर इग्नोर्ड द प्रोग्राम फिगर्स कंटेन्स द 17। अगर हम इसी में अगर इसको इग्नोर मार देते हैं तो क्या हमारी लाइन कितनी इंक्लूड हो जाएंगी, 17 लाइंस। ओके स्टूडेंट्स, तो होपफुली आपका एलओसी का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज फंक्शन पॉइंट। Okay, bye. Take care, student.